Hi. So the question is check if array is sorted and rotated. Given an array nums and return true if the array was originally sorted and in non-decreasing order, then rotated some number of positions including 0, otherwise return false. What it says is you are given an array. Suppose let's take this example 3, 4, 5, 1, 2, and there will be some indexes, right? So we have to check if the array is sorted and rotated. Sorted in ascending order means in increasing order, and then rotated means like if I have to rotate this array by one position, it means that I will take this 3 and put it here, right? On the element second on the fourth position, and then from first position I will shift all of the elements one index on the left, and I will place 3 here, so this array will become, see now, if I want to rotate it from one index, then what will happen? 4. I'm shifting all the elements by one position to the left, and then I'm putting the element on the zeroth position at last. So it got rotated to by one position, right? So we have uh, So we have to check if the array is sorted and rotated. Sorted means increasing order. So इस एग्जांपल में देखते हैं एक बार कि ये sorted and rotated है कि नहीं है. Let's make it a bit clear. राइट, ये सॉर्टेड एंड रोटेटेड है कि नहीं है. सो उसके लिए चेक करना पड़ेगा. सी 3, 4, 5, यस इट्स गोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. देन 1, 2, इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को उठा के अगर मैं आगे रख दूँ यहाँ पे, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में होगा. 1, 2 एंड देन यहाँ से मैं इन दोनों को हटा देती हूँ. So 1, 2, 3, 4, 5, right? It's in ascending order and sorted. Means it was rotated by दो एलिमेंट को उठा के रखा मैंने, मतलब it was rotated by 2 positions, right? So question समझ आ गया. अब हमें यही देखना है. So let's take it to the board. See, मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है. सो यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि मैं समझा चुकी हूँ, राइट? सो आई होप you guys are able to understand the question. If you didn't, then please वीडियो थोड़ा पीछे करो और देख लो. So I've taken this example, right? Originally the array was this. See, this is in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is an array which is sorted in ascending order, and now what I've done, I've rotated this by 3 positions. I've rotated this by 3 positions. Rotated by 3 positions means I've taken 3 elements from the right. I'll do it one by one. See, पहला element last में जाएगा, then all the elements will move by one positions on the left. It will shift to the left. Then again second element will go, and same likewise happen. All the elements will get shifted towards the left by one indexes, and then again the third element will go on the right, and then all the rest elements will get shifted towards the right, towards the left. So this means the array is rotated by 3 positions. See, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3 मीन्स ये 3 पोजिशन से ये रोटेटेड है. सो एक चीज नोटिस करा, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बट देन आफ्टर दिस इट डिक्रीज, मतलब कि जो ये एलिमेंट है इट्स लेसर देन द प्रीवियस एलिमेंट, एंड देन इट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर 1, 2, 3. मतलब ये sorted है and rotated है. By how many elements? 3 elements. We don't have to check by how many elements, but we just have to tell if it's sorted and rotated. So it's sorted and rotated by 3 positions, 3 elements, right?
अब इसका लॉजिक साफ समझ आ रहा है। यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आए, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है, मींस एक ब्रेक हुआ, इंक्रीज मतलब ब्रेक हुआ। फिर यहाँ से हमने चेक किया ये सारे इंक्रीजिंग है कि नहीं। अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये एरे सॉर्टेड है एंड रोटेटेड है, बट विल हैव टू चेक। अगर देखो अगर ये सॉर्टेड होता ये एरे तो क्या होता कि ये जो तीन एलिमेंट्स है, ये जो तीन एलिमेंट्स है ये आगे में चले जाते, है कि नहीं, ये इनके आगे रहते हैं। ये कैसा रहता, 1 2 3, जैसे ऊपर लिख रखा है मैंने 1 2 3, ये उठा के वहां गए तो ये जो लास्ट एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट इज ऑब्वियसली इट्स गोना बी लेसर देन द फर्स्ट एलिमेंट which is right now on the first position, but previously before it was rotated it was the next element of the last element, right? I hope you're getting me. So ये इससे बड़ा होता, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मेरा एरे सॉर्टेड एंड रोटेटेड होगा तो ये एक एलिमेंट जो ये जो एक एलिमेंट जो कम है उसके आगे बढ़ते हुए सारे एलिमेंट्स इससे बड़े होने चाहिए प्रीवियस से, मतलब इसके आगे सारे सॉर्टेड होने चाहिए। एंड दिस लास्ट एलिमेंट मस्ट बी स्मॉलर देन द फर्स्ट एलिमेंट, द एलिमेंट एट द जीरोथ पोजिशन, राइट। अगर इसके आगे जाके अब एक और एज केस आता है कि मुझे चेक करना है कि सॉर्टेड एंड रोटेटेड है कि नहीं। अगर इसके आगे जाके मेरे को मान लो 0 मिल जाता, यहाँ पे मेरा एक और एलिमेंट हो जाता है जिसको 11th पोजीशन पे 0 हो जाता, तो अब मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, अगर ये 0 यहाँ आएगा, अब इसको मैं अगर आगे ले जाके देखूँ तो फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये सॉर्टेड है कि नहीं। फिर मैं इन पूरे एलिमेंट्स को उठा के यहाँ लेके जाती हूँ, राइट। 1 2 3 एंड 0, अभी के लिए एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे, मान लो यहाँ तक है मेरा 11th तक, ये सी ये मेरा एरे है। सो 1 2 3 0 4, 0 आ गया यहाँ पे, इट मीन्स इट इज नॉट सॉर्टेड, राइट। सो ये हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है जो मेरा लेस देन है, लेस देन मतलब कि ये आगे जाके जो एक एलिमेंट मेरा लेस देन प्रीवियस एलिमेंट हुआ ना, फिर यहाँ से ये पूरा सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है, तो ये बस सिंगल टाइम ही होना चाहिए या फिर एक बार भी नहीं होना चाहिए। अगर एक बार भी नहीं हुआ उसका मतलब है कि मेरा एरे सॉर्टेड है एंड रोटेटेड है बट बाई 0 एलिमेंट्स, राइट। मतलब कोई भी रोटेशन नहीं हुई है, 0 एलिमेंट से रोटेशन हुई है, ठीक है। तो ये मेरा लॉजिक है। अगर इस वाले एलिमेंट को देखें, ये चेक करते कि ये सॉर्टेड एंड रोटेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो 6 7 8, यस इट्स इंक्रीजिंग। I1 से शुरू करते हैं, फर्स्ट पोजीशन से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो इसका प्रीवियस पोजीशन में कैसे चेक कर सकती हूँ, ये -1 पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा, राइट। सो आई कीप वाई आई from 1, I'll start checking from 1. If 7 is greater than 6, yes. 8 is greater than 7, yes. 1 is 1 is greater than 8, no, it is less than 8, so I'll maintain a count and I will initialize it to 0. 1 is less than 8, okay fine, एक बार कम हुआ तो मैं काउंट की वैल्यू 1 कर दूंगी। देन 2 इज नाउ, अब मेरा काउंट का यहाँ से क्या था कि मेरा ये अब एरे है जो मेरा सॉर्टेड होना चाहिए यहाँ से आगे तक, इसके बाद कोई कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई कम हुआ मीन सॉर्टेड नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब ओरिजिनली जो एरे था वो मेरा सॉर्टेड नहीं था। सो 2 इज ग्रेटर देन 1, ओके राइट। 9 इज ग्रेटर देन 2, ओके राइट। सो मेरा एरे सॉर्टेड है। बट मैं फिर लास्ट में मैंने बताया कि ये चेक करना है वेदर माई लास्ट एलिमेंट 9 इज लेस देन equal to my first element at 0th position or not. So it's not, it means the array is not originally sorted. See ये हो जाएगा ना 1 2 9, 2 के बाद 9, 9 के बाद दोबारा 6 आ गया, means it is not sorted, right? So इसके लिए so basic logic what we can do, let's write the pseudocode for this. We will maintain an I and to traverse through the array, and we will initialize it to 1, and then we will take a while loop while I is less than length array dot size, ठीक है, array dot size।
अगर इसमें हम चेक करेंगे इफ ARR ऑफ आई इज लेस, मैं चेक करूंगी काउंट की वैल्यू, अगर काउंट की वैल्यू एक भी मतलब कि 1 से ज़्यादा हुई, मैं काउंट की वैल्यू कब इंक्रीज कर रही थी, जब मेरा एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है तब मैं काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ। तो अगर मेरी काउंट की वैल्यू 1 से कम ज़्यादा हुई, इसका मतलब है कि मेरा एरे सॉर्टेड नहीं था एंड रोटेटेड नहीं है। ओके राइट। सो इफ माई ARR ऑफ आई इज लेस देन ARR of I minus 1, what I will do, I will increase the count by 1 and I will increment. Now at last what I had to check, I will check लूप के बाहर निकल के अगर मेरा लास्ट एलिमेंट है वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है कि नहीं, अगर वो छोटा रहेगा तभी मेरा एरे सॉर्टेड एंड रोटेटेड होगा। See, I will check if my ARR of n minus 1, n is the size of array, right? N minus 1 is greater than equals to, greater than only, greater than ARR of 0, then what I will do, I will basically increase the count. अगर मेरा काउंट का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेरा एरे रोटेटेड नहीं मतलब सॉर्टेड एंड रोटेटेड नहीं होगा। देन आई विल इंक्रीज द काउंट एंड देन आई विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, राइट। देन एट लास्ट आई विल रिटर्न इफ काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 1 देन इट्स ट्रू, अदरवाइज अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो फॉल्स रिटर्न होगा। अगर मेरा ARR ऑफ n माइनस 1 अगर मेरा 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये रोटेटेड नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, काउंट की वैल्यू 2 कर दे रही हूँ। अगर काउंट की मतलब एक और बढ़ा दे रही हूँ, अगर 1 से ज़्यादा हुआ 2 हो गया, तो इसका मतलब है कि मेरा एरे सॉर्टेड नहीं है एंड सॉर्टेड एंड रोटेटेड नहीं है, राइट। सो लेट्स सी, लेट मी, so this is the code right here. See, this is the pseudocode. Now this is my pseudocode. Now let's code this on the editor. Sorry. So what I was doing, let's take a variable I which I'm initializing it to 1, and I will also maintain a count while I is less than nums dot size, nums dot length, sorry, we are coding in Java, nums dot length. If nums of I is less than nums of I minus 1, then what I was doing, I was incrementing the count by 1 and our I was incrementing by 1, and I will check if last element nums dot length minus 1 is greater than nums of 0, then I'll increment the count, and then at last I'll return if count is less than equals to 1, then it's true, otherwise it's false. See, yes, it will run, obviously the logic is correct, accepted. Thank you.